Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 10th class 7th chapter The Necklace, and it is written by Gay de Mapsant. So let's discuss about the character first. So the main protagonist of this chapter is Matilda Loisel. Clear? Matilda Loisel was the protagonist. Protagonist means the heroine, the main character of this story. So she was blessed with a physical beauty. She was very beautiful, but the lifestyle she wants, that was not that much. She was not happy with her life because she was born in a poor family, and his father was a clerk, and he's not able to give that kind of life to her. So she was very pretty. She wants to get the big house. She want to get a beautiful dresses. She want to get a big mansion. Okay, so she want to have these kind of life, but somewhere she was not able to have it because of the poor conditions of her family. So sometimes whenever she in this story क्या दिखाया है कि when she was prepared to attend the fancy party, she borrows the diamond necklace from her friend Madame Forrester, and then she lose it, and the entire story was around because of that why she borrowed the necklace, and what kind of physical what kind of mental condition she have when in her life. So this story was all about that. So I hope you understand who the Madame Loisel was the protagonist of this story. Okay, so the next character is Loisel. The Moiser Loisel was the husband of Matilda Loisel. His life, but does not his best of वो क्या करता था, वो हमेशा ही उसके डिमांड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश करता था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच रिच पर्सन. ही वॉज वर्किंग इन द एज अ क्लर्क इन द मिनिस्ट्री. क्लियर? सो वो उतना he was not that much, he was not able to give that much amount or that much happiness to her. वो चाहता था वो खुश कर रखे उस अपनी वाइफ को, लेकिन वो फिर भी उतना वो खुश नहीं रख पाता था. अब देखो वो क्या था, उस टाइम पे जो ही पे met वो हर immensely but does not truly understand her, and he seems to underestimate the depth of her unhappiness. That means वो उस टाइम पे समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कितनी सैड है और कितना उसका वो किस कंडीशन में है और वो क्यों इतना सैड रहती है. वो कोशिश करता था कि हर तरीके से उसको खुश रखे, बट ही वॉज नॉट एबल टू मेक हर दैट मच हैप्पी. Clear? Because internally she just want to have a very beautiful and big luxurious life, and he was not able to give that kind of life to her. Clear? So the next main important character is Madame Forrester. वो अभी हमने उनके मैडम लॉयजल के उसमें भी समझा था दैट शी वॉज मेटिल्डाज वेल्दी फ्रेंड. क्लियर? वो कौन थी? वो मेटिल्डा की वेल्दी फ्रेंड थी, जिससे मेटिल्डा जो है वो कभी ना कभी अपनी जो चीज़ों को बोरो करती थी. क्लियर? और इस स्टोरी में जो मेन नेकलेस जो गुम हुआ है, जिस पे पूरा टाइटल बेस्ड है, शी बोरोड दैट नेकलेस टू फ्रॉम हर. क्लियर? सो she was the friend of, she was the wealthy friend of Matilda. So इसके बारे में जो entirely हम समझेंगे in the story. Clear? So let's start with this chapter. Matilda Loisel was an attractive and pretty lady. So जैसे हमने पहले अभी पढ़ा है कि she was attractive and pretty. Clear? But unhappy, वेरी अनहैप्पी. अब रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया वाई शी वॉज अनहैप्पी, बिकॉज शी वॉन्ट टू लिव. वो क्यों? वो सोचती थी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और क्लेवर हूँ, तो मुझे एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ मिलनी चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट एबल टू हैव इट बिकॉज शी बोर्न इन अ पुअर फैमिली, एंड अनफॉर्चुनेटली शी गॉट मैरिड विद अ क्लर्क ओनली. सो ही वॉज नॉट, एंड ही ऑल्सो नॉट एबल टू फुलफिल हर ऑल ड्रीम्स. क्लियर? अब वो सोचती थी कि वो डिज़र्व करती है. शी हैव टू लिव द लोअर स्टेशन देन शी डिज़र्व्स. क्लियर? वो उतना वो सोचती थी कि वो हमेशा अपने ना फेट को लेकर वो कर्स करती रहती थी कि वाई हर फेट गिव दैट काइंड ऑफ लाइफ टू हर. सो शी वॉन्ट टू गेट अ जेंटलमैन फ्रॉम अ गुड फैमिली एज अ हस्बैंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट हैप्पी. शी वॉज मैरिड विद अ जूनियर क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. क्लियर? Next,
her existence is one of the कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन. सो उसकी लाइफ है वो कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन में थी. वो अपने प्लेन अपार्टमेंट को पसंद नहीं करते थे, जो उसके हस्बैंड का जो प्लेन अपार्टमेंट था वो उस पर, क्योंकि कोई पिक्चर उसके वॉल पे नहीं थी. वो कैसी चाहती थी, वो सो भी फर्नीचर जो वो था वो उसको पसंद नहीं करती थी. वो अपनी मेड को पसंद नहीं करती थी. वो घर का काम जो करती थी वो उसको पसंद नहीं करती थी. वो होपलेस थी और रिग्रेट्स द एंड प्रोवोक्स फ्लाइट द फैंसी और मोर. अब वो क्या करती थी, वो अपनी चारों तरफ वो चाहती थी कि वो एक फैंसी सी लाइफ में रहे, एक लग्जूरियस लाइफ रहे. उसके जो घर में जो फर्नीचर है वो बहुत ही ज़्यादा एंटीक हो. तो बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ कंडीशन बिकॉज ऑफ दैट condition. Clear? Financial condition was that. So she's humiliated. She's so humiliated by her lower middle class existence. Clear? तो वो क्या करती थी, वो कहती she refused to see one of her friends whom she know फ्रॉम हर डेज ऑफ द कॉन्वेंट स्कूल. मतलब वो क्यों अपने फ्रेंड से भी ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करती थी. रीज़न क्योंकि उसको लगता था कि उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो अब रिच हो चुके हैं एंड शी वॉज नॉट हैविंग दैट मच काइंड ऑफ क्लोथ्स. वो उसको एक कंपैरिजमेंट फील होती थी कि उसको लगता था कि सारे फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, बट शी वॉज नॉट हैविंग. तो इसलिए वो अपने ही फ्रेंड्स से भी मिलना पसंद नहीं करती थी. ठीक है. सो शी स्पेंड हर डेज हैंगिंग अराउंड हर ड्रैब फ्लैट. क्लियर? तो वो क्या करती थी, वो अपने फ्लैट के चारों तरफ ही, वो सिर्फ वो अपने ही फ्लैट में रहती थी. वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी. क्लियर? ओके. सो इसीलिए वो, ये आप समझ गए होंगे वाई शी वॉज अनहैप्पी इन हर लाइफ. अब उसका जो हस्बैंड है, ऑन द अदर हैंड हर हस्बैंड सीम्स बेटर एडजस्टेड. तो उसके हस्बैंड किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कराने की कोशिश करता था. वो टेबल क्लॉथ बीन यूज फॉर 3 days. वो मतलब हर तरीके से वो किसी ना किसी वे में अपनी वाइफ को प्रेज करता. जब वो खाना बनाती तो वो कहता वाओ इट्स वेरी नाइस. हालांकि जो मेटिल्डा है उसको बहुत ही शाही खाना पसंद था, कि वो उसकी चाहते है कि जब डाइनिंग टेबल सजे सो डिफरेंट डिशेज हों, बहुत सारी वेराइटी हो. बट वो जो भी बनाती थी, थोड़ा बहुत जैसा भी बनता था, ही ऑलवेज प्रेज हर. क्लियर? सो अब एक दिन क्या दिखाते हैं, वन डे ही केम होम फ्रॉम हिज ऑफिस विद एन इन्विटेशन ऑफ द पार्टी बीइंग गिवन बाय हिज superiors. Okay, so instead of greeting the news, delight Matilda throws the इन्विटेशन डाउन टू द टेबल. क्लियर? मतलब वो खुश होने के बजाय वो और सारा सैड हो जाती है. तो वो कहते हैं कि हैज़ नथिंग सुटेबल टू वेयर फॉर सच एन ओकेजन. रीज़न क्यों वो उदास हो जाती है? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए उस तरह के कपड़े नहीं थे. क्लियर? नेक्स्ट, हर हस्बैंड ट्राई टू कन्विंस हर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ जूनियर क्लर्क टू गेट आस्क फॉर सच एन इवेंट. मतलब वो उसको ये लगता था कि मुझे अगर इन्वाइट किया गया है तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर हिम. बट ही जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट दिस इन्विटेशन और दिस अपॉर्चुनिटी. सो बट मेटिल्डा वॉज नॉट रेडी, बिकॉज उसको वो लगता है कि मेरे पास सुटेबल ड्रेस नहीं है पहनने के लिए. ठीक है. तो वो कहता है कि आप वो वाली ड्रेस पहन सकते हो जो आपने थिएटर में, यू वॉर टू द थिएटर, यू लुकिंग गुड इन दैट. क्लियर? बट वो यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि वो उस ओकेजन के लिए, वहाँ पे जब इतने बड़े बड़े लोग आएंगे तो उस ओकेजन के लिए दैट ड्रेस वॉज नॉट गुड फॉर. क्लियर? सो इसीलिए वो फिर से उदास हो जाते हैं उस चीज़ को लेके. नेक्स्ट, जब लोइजल ट्राई टू अनदर ट्रैक, ही आस्क हाउ मच वुड यू कोस्ट फॉर द प्रॉपर ड्रेस. अब वो कहता है कि चलो ठीक है, कितना आपको पैसा चाहिए. तो वो उसको पैसे बता देती है. इट वॉज एग्जैक्टली द अमाउंट दैट ही हैज़ पुट अवे टू पुट हिमसेल्फ अ गन. क्लियर? वो क्या चाहता था, उसने वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करना चाहता था. संडे के जैसे वो जाते थे, वो छोटी मोटी हंटिंग के लिए जाता था, एंड ही वांट टू ज्वाइन हिज फ्रेंड बाय हैविंग दैट गन. ठीक है. तो उसने जो सेविंग्स किए थे वो उस गन के लिए किए थे, बट ही वांट्स टू मेक हिज वाइफ मोर हैप्पियर. सो इससे पता चलता है कि ही वॉज सच अ लविंग एंड केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन. क्लियर? सो वो अपने जो पैसे हैं वो उनको दे देता है. वो अपने प्लेजर को, अपने जो हॉबीज़ है या अपने उसकी शौक हैं उनको वो सेक्रीफाइस कर देता है टू मेक हिज वाइफ हैप्पी. नेक्स्ट, एन अप्रोप्रिएट ड्रेसेज. और फिर वो क्या कहती है कि एक ऑर्डर हो जाता है कि अप्रोप्रिएट ड्रेस जो है वो कैरी कर लेती है. क्लियर? वो रेडी हो जाती है, बट उसके पास ही डजंट हैव
दैट मच सुटेबल ज्वेलरी विद हिम। ओके, तो वो कहता है कि आप फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हो अपने आप को, बट वो उस चीज़ के लिए वो एग्री नहीं होती, बिकॉज द ड्रेस वो उसकी इस तरह की होती है कि वो ज्वेलरी ही उसको प्रॉपर चाहिए। तो वो कहता है कि यू कैन, ही सजेस्ट दैट मैडम फॉरेस्टर एंड बोरो सम ज्वेलरी, मैडम फॉरेस्टर के पास चले जाइए एंड बोरो सम ज्वेलरी फ्रॉम हर। देन वो उसके आइडिया को पसंद कर लेते हैं, ही थिंक दैट इट्स अ गुड आइडिया, एंड वो जाती है मैडम फॉरेस्टर के पास, कंप्लीट एंड गोज टू द वार्डरोब एंड गेट अ ज्वेलरी कैस्केट। तो वो एक मैटिल्डा को एक ज्वेलरी जो है वो पसंद आ जाती है। क्लियर। उसके बाद तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक ब्लैक सैटन केस उसको समझ में आता, पसंद आता है, और उसका जो नेकलेस होता है वो रिवर ऑफ डायमंड्स, वो बहुत ज़्यादा उसको बोरो कर लेती है। एंड मेटिल्डा थ्रोज हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स एंड नेक एंड देन जेलस हरिस। अब देखो वो क्या कहती है कि जब वो जाती है ना, तो हर कोई जो इंसान है वो उसको पसंद करने लग जाता है, जब भी उस पार्टी में जब वो जाती है। सो एवरीबडी लाइक हिम अलॉट, सबके सब जो है उसके, इवन जो जिसने वो पार्टी थ्रो की थी वो भी अट्रैक्ट होता है लॉयजल की ब्यूटी को, और उसके जो उसने जिस तरह से अपने आप को अटायर वेयर अप किया गया था, ही वॉज वेरी, एंड वो बहुत ज़्यादा अपनी पूरी पार्टी में इंजॉय करती है, और एवरी मिनिट इवन द मिनिस्टर नोटिस्ड हर बिकॉज शी डांस थ्रू आउट द नाइट लिविंग। ओके, तो वो पूरी रात बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है मेटिल्डा, बिकॉज उसकी जो ड्रेस है ना, उसकी जो ज्वेलरी है, इट वॉज सो मैच्ड and so he was very good. Okay, so Matilda wants to get away as fast as possible because she does not want that other woman who wear furs notice her plain clothes. क्वेश्चन आएगा कि वो क्यों जल्दी निकलना चाहती थी, बिकॉज उसने जो कोट ऊपर ओवरकोट पहना था वो थोड़ा प्लेन कपड़े का था, और जो बाकी जो रिच पर्सन्स थे उन्होंने फर वाला पहना होता। शी वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। सो शी रन्स आउट द स्ट्रीट होपिंग टू फाइंड अ कैब। ओके, तो वो क्या करती है, वो कैब लेने की जाती है, फटाफट जब जैसे वो घर पहुंचते हैं वो अपने आप को अनरैप करती है, बट जैसे ही वो देखती है कि शी एंड हर हस्बैंड फाइंड एन ओल्ड डिसअपॉइंटेड। वो क्यों थ्रू आउट वो क्या सोचते हैं कि जैसे वो अनरैप करती है अपने आप को, वो देखते हैं कि द नेकलेस वॉज नॉट देयर, जो हस्बैंड है वो दोबारा उसी रास्ते से राइट बैक टू देयर dismal apartment and sad for Matilda with her fresh memories of her triumph। तो वो क्या कहती है कि वो एक तरह से वो दोबारा से उस रास्ते पे जाता है। ओके, हम वो क्या कहते हैं, ही रिटर्न सेवरल आवर्स लेटर हैविंग फाउंड नथिंग। वो दोबारा जब जाता है वो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी, पूरे बहुत सारे घंटे के बाद भी उसको वो चीज़ नज़र नहीं आती, उसको नेकलेस कहीं भी मिलता नहीं है। तो वो पुलिस के पास जाते हैं, बट देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। ओके, सो देन ही एडवाइज तो लॉस्ट एंड फाउंड वो करते, लेकिन अब वो क्या बोलते हैं, मैडम फॉरेस्टर को बोल देते हैं कि दो क्लैप्स जो है नेकलेस के वो टूट गए थे, उसको रिपेयर के लिए दिया, आफ्टर 5 days इट विल बी गिवन टू यू। सो दे डिसाइड, अब वो नेकलेस मिला नहीं, सो दे डिसाइड द नेकलेस इज ट्रूली गॉन एंड दे हैव टू रिप्लेस्ड इट। मतलब अब उनको एक नया नेकलेस उसको मैडम फॉरेस्टर को देना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे फिर वो कहते दे टेक द नेकलेस केस एंड ज्वेलरी ज्वेलर टू फाइंड द स्टैंडर्ड डायमंड एंड मैचेस। ओके, तो वो बहुत सारे ज्वेलर के पास जाते हैं, तो यहाँ पे कितना अमाउंट होता है, 36,000 फ्रांसिस। क्लियर, कितना, 36,000 फ्रांसिस का उनको पे करना पड़ता है। तो 18,000 फ्रांसिस इनहेरिटेंस दैट द हस्बैंड हैड रिसीव फ्रॉम हिज फादर। जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी उनको देनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देयर बाय, अब वो कहते लिव्स फॉर द नेक्स्ट डेकेड। अब रिप्लेसमेंट नेकलेस रिटर्न टू द मैडम फॉरेस्टर, दिस रिमार्क रादर क्लाउडी शुड बी हैव रिटर्न सूनर बिकॉज शी माइट हैव नीडेड इट। शी डज नॉट बॉदर टू ओपन द केस, मतलब उसने देखा भी नहीं कि वो जो नेकलेस को, अब जैसे उसने मेटिल्डा ने उसको रिटर्न किया तो उसने देखा भी नहीं कि उसमें है या नहीं है, उसने वो बस पैकेट को पकड़ा एंड शी मूव्ड इनसाइड। अब जो
अब उसके पास है तेरे बस, उनके पास डब्स, मतलब उनके पास अब क्या रह गया, सिर्फ कर्ज बच गया था. सो दे गेट रेड देयर मेड, वो मेड छोड़ दिया, जो प्रॉपर अपार्टमेंट था उन्होंने उसको छोड़ दिया. अब दे कैरी द गार्बन डाउन द स्ट्रीट्स. अब वो क्या करते थे, शॉपिंग करना, बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कभी भी. तो एवरीबॉडी टू सेव फ्यू सॉ, मतलब जितना हो सके वो अपने आप को सेविंग्स करने लग जाते हैं. जो हस्बैंड है वो मून लाइट में काम करने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं, जितना हो सकता है वो डबल शिफ्ट में काम करने लग जाते हैं, जिससे कि जो कर्ज उनके ऊपर हुआ है वो जल्दी से जल्दी उतार सकें, ठीक है. सो दिस गोज ऑन ईयर एंड ईयर्स आफ्टर, बहुत ज़्यादा साल वो कंटिन्यू चलते रहे, तो डेब्ट इज पेड. ओके, टाइम टू, अब वो ट्रांसफॉर्म्ड मेटिल्डा इनटू अ पुअर एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड हग. मतलब वो क्या कहते, पहले जो बहुत खूबसूरत सी जो मेटिल्डा थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में उसको रहना पड़ रहा था, तो वो जो है वो और ज़्यादा बहुत जल्दी अपनी एज से मेच्योर दिखने लग गई थी. सो एक विद अ लाउड वॉइस, रेड हैंड्स एंड नेग्लेक्टेड हेयर, मतलब उस वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ये सारा उसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, ठीक है. सो शी हैड हर ग्रेट सक्सेस. अब वो बस वो क्या करती थी, वो बस उसी रात को याद करती रहती थी कि जब वो मिनिस्टर की पार्टी में गई थी, एंड शी हैड अ ग्रेट फन ओवर देयर. वुड हैव बीन हर फॉर्च्यून हैड शी नॉट लॉस्ट द नेकलेस. वो कहते हैं कि काश वो नेकलेस को गुम नहीं करती, तो वो शायद जो वो फॉर्च्यून है वो और ज़्यादा उसके साथ इंक्रीज हो जाता. क्लियर. अब वन संडे, one Sunday, she strolled along the campus. Clear. So, मैडम फॉरेस्टर टॉकिंग टू अ चाइल्ड फॉर वॉक. वो अब वो देखती है कि मैडम फॉरेस्टर, वो कहती है कि जीन फॉरेस्टर इज स्टिल यंग लुकिंग. वो जीन है, यानी कि जो मैडम फॉरेस्टर, उसका नाम क्या था, जीन फॉरेस्टर, वो अभी भी उतनी ही यंग नज़र आ रही थी, लेकिन जो उसके कर्जे के कारण और टेंशन के कारण जो मैडम लॉयजल है वो बूढ़ी हो गई थी, ठीक है. सो मेटिल्डा जो है लॉयजल डिसाइड टू टेल हर अबाउट हर ओल्ड फ्रेंड अब एवरीथिंग हैड हैपन. जो जो हुआ वो सोचती है कि मैं क्यों ना अपनी फ्रेंड को वो सारी चीज़ें बता दूं, ठीक है. बट जो वो है उसको समझ नहीं, पहचान ही नहीं पाती, बिकॉज उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी, इसी वजह से वो शी इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज हर. ओके. सो शी एक्सप्लेन दैट शी हैज़ प्रेटी ग्रीन. वो सारी जितना भी पूरा पोर्शन होता है कि किस तरह से तुम्हारे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ा और मुझे बहुत सारे ऑर्डर को करना पड़ा, बट नाउ द ऑर्डर इज़ ओवर. मेरा अब जो है वो पूरा हो चुका है. क्लियर. सो वो कहते हैं कि मेरे अब उसको फ्रेंड को वो कहते हैं कि हाँ, वो जब ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो वो प्राउड फीलिंग होगी कि मैंने उनका रिटर्न किया है, ठीक है. सो न्यू दैट डिफरेंट नेकलेस हैड बिन रिटर्न टू हर. तो वो बता देते हैं कि वही वाला नेकलेस नहीं है, इट वॉज द रिप्लेस्ड नेकलेस. क्लियर. वो अपने फ्रेंड को बता देती है. बट जो फॉरेस्टर है वो डीपली टच्ड हो जाती है. वो कहते हैं कि टॉकिंग बोथ ऑफ हर हैंड, वो अपने दोनों अपने फ्रेंड के हाथों को पकड़ते हैं. ओ पुअर मेटिल्डा, बट माइंड वॉज फेक, इट वॉज वर्थ नो मोर 500 फ्रांसिस. ठीक है. वो क्या करती है कि वो बता देती है कि इसकी जो कीमत है वो 500 फ्रांसिस से नहीं है, लेकिन उन्होंने कितने, मैंने अब आप ये क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे हाउ मच मनी दे हैव टू पे टू गेट दैट replaced necklace. Clear. So we have done with the chapter. You have to write down your summary and the given assignment in your fair notebook. Clear, students?